Hello students, welcome back to Future Foundation. Students, in last class of PYQ series, we discussed some questions of straight lines. Now in today's class also, we will discuss some more questions of the same chapter. So let's begin. Question is, if x square minus y square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 is the locus of a point which moves such that it is always equidistant from the lines x plus 2y plus 7 is equal to 0 and 2x minus y plus 8 is equal to 0. Then the value of g plus c plus h minus f equals what? यहाँ पर ये जो दो लाइन गिवन है x plus 2y plus 7 is equal to 0 and second one is 2x minus y plus 8 is equal to 0. इनको लेकर एक पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है प्लेन के अंदर कि उसका डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स is always equal, from these two lines is always equal. Means अगर मैं बात करूं, सपोज करो ये पॉइंट P यहाँ कहीं है, उसका डिस्टेंस इस लाइन से और इस लाइन से इक्वल है. बेटा तो ये मेरे लिए कोई नई बात तो हुई नहीं, मैं जानता हूँ कि अगर ऐसा है तो वो एंगल बाइसेक्टर होगा, वो लोकस उस पॉइंट P का एंगल बाइसेक्टर होगा, है ना. एंगल बाइसेक्टर होगा गिवन लाइंस के लिए. और ये पॉइंट बाहर की तरफ भी हो सकता है, मतलब अगर लाइन कोई ये होती है तो ऐसा भी हो सकता है कि पॉइंट यहाँ पर हो, तो उस केस में ये और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, राइट. ये भी एंगल बाइसेक्टर होगा, मतलब हम जानते हैं कि दो लाइन के लिए दो एंगल बाइसेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. तो अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ एंगल बाइसेक्टर की, तो वो कुछ ऐसे लिखूँगा. पहले तो ये स्टेटमेंट लिखूँगा, लोकस ऑफ पॉइंट P is the angle bisector, the angle bisectors of x plus 2y plus 7 is equal to 0 and 2x minus y plus 8 is equal to 0, right. So that is equations क्या है, कुछ ऐसा x plus 2y plus 7 is upon root over 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर is equal to plus minus 2x minus y plus 8 upon रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, राइट. तो हमें क्या मिला, हमें दो इक्वेशंस मिली यहाँ से. एक तो ये मिलेगी, ये तो कैंसिल हो जाएगी डिनोमिनेटर वाली टर्म, x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस 8 और सेकेंड x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई माइनस 8, राइट. तो ये हो गया x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 and second is x plus y plus 15 is equal to 0, right. तो combined equation लिखूँ मैं, तो combined equation x minus 3y plus 1 into 3x plus y plus 15
इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 3x² प्लस XY प्लस 15x माइनस 9XY माइनस 3y² माइनस 45y ओके प्लस 3x प्लस y प्लस 15 इज इक्वल टू 0 राइट। सो ये हो गया 3x² माइनस 3y² एंड दिस इज माइनस का 8xy 15 प्लस का 18x प्लस का 18x माइनस का 44y एंड प्लस का 15 इज इक्वल टू 0 राइट। अगर मैं कंपेयर करने लगूँ फिर और वाई x² को कोफिशिएंट 1 बनाया तो ये हो जाएगा x² माइनस y² माइनस 8xy/3 प्लस 6x माइनस 44 on 3y plus 5 is equal to 0 राइट। तो g is 3, c is 5 and h is minus 4/3 and minus f, yeah, f is minus 22/3. G plus C plus H minus F. 3 plus 5 minus 4/3 plus 22/3. So this is 8 minus plus minus इधर ये प्लस का 18/3 मतलब ये 3 6 18 so 8 plus 6 14. So G plus C plus H minus F is 14. Option B is correct. चलिए, but the question is the vertices of a triangle are A minus 1 comma 3, B minus 2 comma 2 and C 3 comma minus 1. A new triangle is formed by shifting the sides of the triangle by 1 unit inwards. Then the equation of the sides of the new triangle nearest to the origin is. कुछ ऐसा है कि हमें vertices given है minus 1 comma 3. So this is minus 1 comma 3 minus 2 comma 2 and C 3 comma minus 1 right. अब ये हैं ट्राइंगल के वर्टिसेस। तो यहाँ पर अगर इक्वेशन लिखूं इन सभी लाइन की या साइड की कह लो तो इक्वेशन ऑफ ए बी दैट इज y minus 3 is equal to 2 minus 3 upon minus 2 plus 1 2x plus 1 right. So this is y minus 3 is equal to x plus 1 or x minus y is equal to minus 4. Equation of AC, इक्वेशन ऑफ AC क्या हो गया y minus 3 is equal to minus 1 minus 3 upon y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1.
right? So y minus 3 is equal to minus 4 upon 4, that is minus x minus 1. So x plus y is equal to 2, right? ये बेटा साइड्स की इक्वेशन मैं इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि ये डिसाइड कर पाऊँ कि कौन सी साइड नियरेस्ट टू ओरिजिन होने वाली है अगर मैं साइड्स को 1 यूनिट इनवर्ट शिफ्ट करता हूँ तो. And the equation of BC. So this is y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. So this will be y minus 2 is equal to minus 3 upon 5 into x plus 2. So 5y minus 10 is equal to minus 3x minus 6. So 3x plus 5y, 3x plus 5y is equal to 4. तो ये तीन साइड्स की इक्वेशन में पता लग गई. अब देखिएगा, अगर मैं ओरिजिन से डिस्टेंस की बात करूं तो से इसको मैंने डिस्टेंस d1 बोला. ओरिजिन से डिस्टेंस आएगा ये 0 प्लस 0 प्लस 4 अपॉन √2, मतलब 2√2. ओके, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये बात हो रही है ना बेटा. इसी तरीके से इसमें d2, ये भी ओरिजिन से ही है. कितना आ जाएगा? 0 प्लस 0 माइनस 2 mod ऑफ दिस बाई √2, मतलब दिस इज √2. एंड इसके लिए बात करें तो d3, ये भी फ्रॉम ओरिजिन ही है. दिया जाएगा mod ऑफ 0 प्लस 0 माइनस 4 अपॉन 5, मीन्स 4/5. सॉरी, नॉट 5, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, रूट ओवर 34, रूट ओवर 34, मतलब 4/√34. √34 का मतलब है कि 5 पॉइंट समथिंग 6 के आसपास. तो 4/6 के आसपास, मतलब ये तो लेस देन 1 है, राइट. तो इन सभी में जो बट अगर मैं आफ्टर आफ्टर शिफ्टिंग ये डिस्टेंस बन जाएगा 2√2 प्लस 1. ओके, मतलब ओरिजिन के करीब आ जाएंगे ना, तो 2√2 माइनस 1, राइट बच्चे. एंड दिस इज आफ्टर शिफ्टिंग. तो जब शिफ्टिंग होगी तो ये इधर खिसकेगा, राइट. बात समझ आ रही है. एंड x प्लस वाई, मतलब मैं यहाँ पे बता देता हूँ, दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज x माइनस वाई इज इक्वल टू -4. ठीक है, तो ये भी अंदर को खिसकेगा. ठीक, तो दिस विल बी √2 माइनस 1. एंड अगर इसकी बात करें तो ये ऊपर की तरफ जाएगा. इसकी इक्वेशन क्या है? लास्ट वन, 3x प्लस 5y.
3x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। तो इसका जो मतलब बोलूँ ना मैं, आफ्टर शिफ्टिंग इसका डिस्टेंस बनेगा रूट 4 अपॉन रूट ओवर 34 प्लस 1। ठीक, तो ये जो भी डिस्टेंस होगा वो रूट टू माइनस 1 से कम ही होगा। ठीक, क्योंकि ग्रेटर देन 1 हो चुका है अब और ये लेस देन 1 है, राइट। तो वो क्या बोल रहे थे, देन द इक्वेशन ऑफ द साइड ऑफ द न्यू ट्राइंगल नियरेस्ट टू द ओरिजिन। तो जो इक्वेशन होगी ना साइड की, वो पैरेलल होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2k। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन ऑफ न्यू साइड is parallel to x plus y is equal to 2. Let x plus y is equal to c. ओके, ये है न्यू साइड। ऑल्सो जो डिस्टेंस होगा इसका मतलब ये 1 यूनिट शिफ्ट हुआ है। ओके, तो जो डिस्टेंस है इनमें वो 1 यूनिट है। तो मैं कह सकता हूँ ऑल्सो मॉड ऑफ c माइनस 2 ऑन रूट 2 इज इक्वल टू 1, है ना। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस बेटा भूल गए क्या? हम कैसे निकालते थे? कांस्टेंट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते थे, है ना। मॉड ऑफ c1 माइनस c2 ऑन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसी से मैंने लिखा है। बट ये डिस्टेंस जो है 1 है तो प्लस माइनस आएगा, तो c इज इक्वल टू c माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। तो c की जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट 2 माइनस 2 और रूट 2 प्लस 2 और c इज इक्वल टू माइनस रूट 2 प्लस 2, मतलब 2 माइनस रूट 2, राइट। So equation is x plus y plus 2 minus root 2. Therefore equation क्या क्या हो सकती है? x plus y plus 2 plus root 2 और x plus y plus 2 minus root 2 is equal to 0 is equal to 0। ठीक है बेटा, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है वो देख लेते हैं एक बार। तो 2 प्लस रूट 2 किसी ऑप्शन में है क्या? नहीं। 2 माइनस रूट 2, 2 माइनस रूट 2, यस, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, तो बेटा इस क्लास के अंदर हम 2 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।